امریکی میڈیا کا ایرانی صدر کے مستعفی ہونے کا دعویٰ، تاہم پاسداران انقلاب نے تردید کر دی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز نے دعویٰ کیا کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مبینہ طور پر اختیارات محدود ہونے کے باعث استعفے کی درخواست دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مسعود پزشکیان نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے آفس کو بتایا کہ انہیں اہم فیصلوں کے عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا نہیں کر پا رہے۔ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران کی طاقتور پاسداران انقلاب گارڈز اور دیگر سخت گیر حلقوں کا اثر و رسوخ بڑھنے سے منتخب حکومت کا کردار کمزور ہو گیا۔ صدر اور ان کی کابینہ بڑے فیصلوں سے الگ ہو چکے۔ ایرانی حکام نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ صدارتی دفتر کے عہدیدار اور پاسداران انقلاب گارڈ سے وابستہ ذرائع نے کہا کہ صدر نے نہ تو استعفیٰ دیا، نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی درخواست یا شکایت کی ہے۔ وہ اپنے عہدے پر بدستور فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال برآمدات ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال پاکستان کی برآمدات بڑھا کر ریکارڈ 35 ارب 63 کروڑ ڈالر پر پہنچانے کا تخمینہ لگایا ہے۔ پاکستان کی برآمدات یکم جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال 2026-27 کے دوران ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچیں گی۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال پاکستان کی برآمدات، تجارتی خسارے اور درآمدات سے متعلق تفصیلی تخمینہ پیش کر دیا۔ آئی ایم ایف کے تخمینے کے مطابق 20 جون کو ختم ہونے والے رواں مالی سال 2025-26 میں پاکستانی برآمدات 31 ارب 93 کروڑ ڈالر رہنے کا امکان ہے، جو کہ اگلے مالی سال بڑھ کر 35 ارب 63 کروڑ ڈالر پر پہنچ جائیں گی، جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہوگا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری دور شروع ہو گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے اعلیٰ عہدیدار اس وقت سکردو پہنچ چکے ہیں، جہاں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے اپنی قیادت کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر گلگت بلتستان میں مختلف انتخابی سرگرمیوں میں شریک ہوں گے۔ سکردو اور بعد ازاں دیگر بلتستانی علاقوں کا وزٹ ان کے شیڈول میں شامل ہے۔ اس حوالے سے اپنے بیان میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ سکردو گلگت بلتستان الیکشن مہم کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم صرف اقتدار کے حصول کی کوشش نہیں، بلکہ گلگت بلتستان میں جمہوریت کے تعین کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کا پیغام ہر شہر، قصبے اور گاؤں تک پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں، جہاں پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری، ہمایوں خان، گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور ندیم افضل چند نے ان کا استقبال کیا۔ خوشاب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ بیورو چیف ظفار حسین مرتضی کی رپورٹ کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشاب میں صفائی کے حوالے سے مثالی انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مقرر کردہ مدت سے قبل عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے عید کے دنوں میں صفائی آپریشن کی نگرانی کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر، ایم ڈی ستھرا پنجاب، غزالہ کنول، اے ڈی سی آر عبداللہ خان، اے سی خوشاب چودھری ضیاء اللہ اور دیگر ضلعی انتظامیہ کی محکمے کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد کے مستحق قرار۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب کی بہتر حکمت عملی، دن رات محنت، انتھک کوششوں اور مؤثر اقدامات کی بدولت خوشاب میں عید الاضحیٰ کے تینوں روز صفائی کے بہترین انتظامات، بروقت رسپانس سے صفائی آپریشن کامیاب۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشاب میں صفائی ستھرائی، سیکیورٹی، ٹریفک روانی اور عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو عوامی حلقوں نے خوب سراہا ہے۔ صفائی آپریشن میں 16,000 سے زائد کلو گرام چونا، 1200 لیٹر فینائل، 320 لیٹر عرق گلاب استعمال کیا گیا۔ چاروں تحصیلوں میں آگاہی کیمپ اور کلیکشن پوائنٹس بھی قائم کیے گئے۔ اس موقع پر ضلع بھر میں آپریشن کے دوران 5,845 ٹن علائشی اور ویسٹ کو محفوظ طریقے سے تلف کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر، متعلقہ اداروں کے افسران اور اہلکار عید کی تعطیلات کے باوجود اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں سر انجام دیتے رہے۔ بیورو چیف خوشاب ظفار حسین مرتضی کے مطابق ایس ایچ او میٹھا ٹیوانا کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈی پی او ڈاکٹر امارہ شرازی کی ہدایات پر ایس ایچ او کی جانب سے ایکشن لیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ برآمد مقدمہ درج کر لیا گیا۔
ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उस्मान अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अजहा के बाद ननकाना साहिब में चर्बी और रलाइशों से ऑयल बनाने का मुबैना मकरू धंधा बेनिकाब 320 किलो मवाद जब्त, मुकदमा दर्ज। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ननकाना साहिब के इलाका वकील वाला गाँव में कार्रवाई करते हुए चर्बी और रलाइशों से ऑयल तैयार करने के मुबैना गैर कानूनी कारोबार का सुराग लगा लिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में चर्बी और रलाइशें कब्जे में ले ली गई। कार्रवाई के दौरान 2 ड्रमों और टीन में मौजूद 320 किलोग्राम चर्बी और रलाइशें जब्त की गईं, जबकि मुल्जिमान बाबर और बिलाल के खिलाफ जालसाजी और मुतालिका कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। चेकिंग के दौरान चर्बी से तैयार किए जाने वाले ऑयल के हवाले से लाजमी केमिकल, मेटनाइल डाई समेत दीगर जरूरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। फूड अथॉरिटी के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के जरिए मकरू धंधे को बेनकाब किया गया। गैर मयारी मुतरी सेहत ऑयल की तैयारी और फरोख्त की रोकथाम के लिए मज़ीद तहकीकात जारी हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने कहा, चर्बी से हासिल होने वाला ऑयल सिर्फ साबुन साजी या बायोडीजल की तैयारी में इस्तेमाल करने की इजाज़त है। फूड फ्रॉड में मुलविस अनासिर किसी रायत की मुस्तहिक नहीं है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैदराबाद के सदर सलीमुल्लाह शेख ने कहा है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मुतनाज़ हो गया। हैदराबाद में मनपसंद सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड जारी किए गए। उन्होंने कहा कि तमाम कवायद मुकम्मल होने के बावजूद मुतादिद सहाफ़ियों के कार्ड जारी नहीं किए जा रहे, जो कि एक गैर कानूनी अमल है। मामले से मुतालिक सेक्रेटरी इत्तलात, डीजी और दीगर हुकाम को आगाह किया गया, लेकिन ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इस किस्म के गैर कानूनी अमल के खिलाफ जल्द महकमा इत्तलात के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी जाएगी। सिंध भर में बाइकाट करेंगे। तमाम तर कानूनी और आइनी फोरम पर महकमा इत्तलात को फरीक बनाएंगे और सहाफ़ियों के हुकूक के लिए कार्रवाई की जाएगी। नेल्सन से आपको अपडेट करेंगे। मुमताज़ मुनीर सोहतरा के मुताबिक बरतानिया में कवाली नाइट का इनेकाद, जिसके ऑर्गेनाइज़र बब्बू राना थे। स्टेज ऑर्गेनाइज़र राजा जाहिद इकबाल थे। बब्बू राना पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल और कॉमेडियन हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि कौंसलर जफ़र अली, कौंसलर नईम अख्तर, कौंसलर चौधरी मुनीब इकबाल, मियाँ मुदस्सिर चौधरी, आबिद अली रज़ा चौधरी, अकमल नसरुल्लाह गोंदल ने खुसूसी शिरकत की। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद प्रोग्राम से महसूस हुई। बब्बू राना ने कहा कि वो आइंदा भी ऐसे बड़ा प्रोग्राम नेल्सन में ऑर्गेनाइज करेंगे और उम्मीद है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी इसी तरह शरीक होगी और अपने पाकिस्तानी फनकारों की हौसला अफजाई करेगी। खबर शामिल करते हैं बार्सिलोना से। मुमताज़ मुनीर सोहतरा की रिपोर्ट के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2026 में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ स्पेन का पहला होने वाला मुशावरती इजलास ज़ेर सदारत सदर तहरीक इंसाफ स्पेन मलिक मोहम्मद शहबाज जलसे में तब्दील हो गया, जिसमें साबिक सदर तहसील इंसाफ मेडर्ड जाहिद कैसर की खसूसी शिरकत के अलावा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अहम और कलीदी किरदार अदा करने वाले टाइगर्स ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ, जबकि दुआ प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने करवाई। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ स्पेन चौधरी सबूर ने अदा की। मुकर्री ने ख्यालात का इजहार करते हुए मलिक मोहम्मद शहबाज को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्पेन सैयद जुल्करनैन शाह और बेहतरीन हिकमत अमली को सराहते हुए उन्हें पार्टी का सरमाया करार दिया। मलिक मोहम्मद शहबाज ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्पेन में मुकीम तमाम टाइगर्स को साथ लेकर चलेंगे। हाल कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान से गूंजता रहा, जबकि मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी एहसन रिजवान गोंदल ने मिठाई खिलाकर मलिक मोहम्मद शहबाज और उनकी काबीना को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तमाम शुरका की तवाज़ो मिनाल रेस्टोरेंट एंड मैरिज हाल बार्सिलोना के लजीज खानों से की गई। खबर शामिल करते हैं जेलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर ज़िले हेल्थ अथॉरिटी जेलम के ज़ेर एहतमाम DHDC जेहलम में आगाही सेमिनार और वाक़ का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तम्बाकू नोशी और दीगर तम्बाकू की मसनूआत के मुज़र असरात के हवाले से अवाम में शऊर उजागर किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर जवाद अहमद ज़िले हेल्थ ऑफिसर जेहलम और डॉक्टर निसार खालिद प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC जेहलम ने शुरा को तम्बाकू नोशी से लाहक संगीन बीमारियां ख़ुसूसन दिल, फेफड़े और कैंसर जैसी अमराज को ख़तरात से आगाह किया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि तम्बाकू से पाक मुआशरे के क़याम के लिए आगाही सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस मौके पर मुनक़दा आगाही वाक़ में महकमा सेहत के अफसरान, अमले और शहरियों ने शिरकत की और तम्बाकू नोशी के खिलाफ पैगामात आम किए। मज़ीद बराह ज़िला जेहलम के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स, हस्पताल और देही मराकज़ सेहत में भी वर्ल्ड नो टोबैको डे के हवाले से आगाही सेमिनार्स और वाक्स का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अवामुन्नास ख़ुसूसन नौजवान नस्ल को तम्बाकू नोशी के मुज़र असरात से आगाह करना और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। ज़िले महकमा सेहत जेहलम के ज़ेरे तमाम मुनक़दा इन सरगर्मी में तम्बाकू नोशी के खात्मे और सेहतमंद मुआशरे के क़याम के अज़म का इआदा किया। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ पेशेन आगा अशरफ होरमज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ किला अब्दुल्ला मेज़ई अड्डा में नामालूम अफराद के फायरिंग से 5 अफराद शहीद और 2 ज़ख्मी। वाक़या में आल सिंध होटल्स के सदर सैयद जाफ़र आगा और सैयद जमील आगा
जख्मी शहीद होने वालों में मारूफ फुटबॉलर सैयद मतीउल्लाह, जिनका ताल्लुक गांव होरमज़ई से है, और उसके साथ साथ जांबाहक अफराद में दाद मोहम्मद, वालिद रहमतुल्लाह अब्दुल जब्बार, वल्द सुल्तान मोहम्मद और मोहम्मद रज़ा, वल्द फजलुर रहमान, मोहम्मद इस्लाम, वल्द मोहम्मद रमज़ान शामिल हैं। नामालूम अफराद फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नाके लगाकर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। वाक़े के बाद शहीदों अजीज़ों अकारबों ने एहतजाज, जिनको क्वेटा अफगानिस्तान रोड ब्लॉक कर दिया गया। मुल्तान से डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक ईद उल अजहा के मौका पर हैंड वेलफेयर फाउंडेशन ने इंसानियत और खिदमत की रोशन मिसाल कायम करते हुए 1000 मुस्तहिक ख़ानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया। फाउंडेशन की जानिब से नादार और ज़रूरतमंद अफराद को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए इफलाही सरगर्मियों का इनेकाद हैंड वेलफेयर फाउंडेशन गुज़िश्ता 12 सालों से इफलाही खिदमात सर अंजाम दे रही है। दी NGO वर्ल्ड फाउंडेशन के ताउन से हज़ारों मुस्तहिक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया जाता है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैंड्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी जो है हम अपने उन ख़ानदानों को साथ लेके चल रहे हैं जो कि कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में जो है 1000 ख़ानदानों में जो है गोश्त तकसीम किया जाएगा। ये जो पैकेट आप देख रहे हैं ये 4 से 5 किलो का एक पैकेट है और किसी पैकेट में 6 kg भी है। तो ये गोश्त जो है ये उन घरों में दिया जा रहा है जो कि कुर्बानी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो हम ईद मनाते हैं हर साल, ये कोई पिछले 12 साल से ये सिलसिला जारी है। हैंड्स वेलफेयर फाउंडेशन उन ख़ानदानों के साथ मिलकर ईद मनाता है जो हर साल जिनकी तरफ से एक दरख्वास्त आती है कि हम लोग कुर्बानी के साथ नहीं रखते। तो ये घरों में जो है उनकी असेसमेंट की जाती है, जो इस काबिल या जो समझते हैं कि हम कुर्बानी नहीं कर सकते, ये उन घरों में जो है गोश्त तकसीम किया जाता है। तो ये इस तरह से जो है ईद की खुशियाँ लोगों के लिए भी दोबाला हो जाती हैं। और हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला भी पिछले 1 साल से, जैसे कि सैलाब आया उसमें भी जारी है। कभी हम राशन तकसीम कर रहे हैं, कभी गरीब बच्चों में, गरीब ख़ानदानों में कोशिश कर रहे हैं कि ईद का हिस्सा हम अपना डालें, तो हम कपड़े भी तकसीम कर रहे हैं। और अभी जो आज जिस तरह आप लोग देख रहे हैं तो ये गोश्त की तकसीम चल रही है और ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ और ज़िला मुल्तान में चल रही है और इन ख़ानदानों के साथ मिलकर हम ईद मना रहे हैं। तो हैंड्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। पिशीन से आपको अपडेट करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ महबूब आगा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ किला अब्दुल्ला मेज़ाई अड्डा नादरा मार्केट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 5 अफराद शहीद जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी होने वालों में ऑल सिंध होटल के सदर सैयद जाफ़र आगा और सैयद जमील आगा भी शामिल है, जबकि मारूफ फुटबॉलर सैयद मतीउल्लाह भी शुहदा में शामिल हैं जिनका ताल्लुक होरमज़ई से था। दीगर जांबाक अफराद में हाजी दाद मोहम्मद, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद रज़ा और मोहम्मद इस्लाम शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नामालूम हमलावर फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी करके फरार मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। शुहदा के अजीज़ों अकारिब की जानिब से एहतजाजन कोयटा चमन शाहराह बंद कर दी गई। किला अब्दुल्ला में आए रोज़ फायरिंग, चोरी, डकैती और दीगर जराइम में इजाफा हो रहा है। अवामी हलकों ने किला अब्दुल्ला इंतज़ामिया से फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। बार्सिलोना से मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के शहर वेलेंसिया में पहली बार चांद रात पर ख़वातीन और बच्चों के लिए स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉल में ख़वातीन का रश उरूज तक पहुंचा। वेलेंसिया के बिजनेसमैन शेख तारिक महमूद की जानिब से मकामी हॉल में लगने वाले मीना बाज़ार में ईद की मुनासबत से कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। ख़वातीन की जानिब से गुफ्तगू में कहा गया कि पाकिस्तानी ख़वातीन का ये शेवा रहा है कि ईद के मौका पर नित नए और मुनफरद लिबास का इंतखाब करती हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान से ज़्यादा स्पेन में ईद मनाने का मज़ा आता है क्योंकि यहाँ ईद पर मुख्तलिफ पार्टीज़ का इनेकाद किया जाता है। नुमाइश के ऑर्गेनाइज़र शेख तारिक महमूद ने कहा कि हमेशा कोशिश है कि एक छत तले ईद की मुनासबत से तमाम चीज़ें मुहैया की जाएँ। ख़वातीन ने चांद रात के इवेंट को एंजॉय करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि आने वाले वक्त में इस तरह के मज़ीद इवेंट का इनेकाद किया जाएगा।